वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with our most important defense current affairs series, and this is the part 3 of part 5. So initially we have covered the 2 months, that is November as well as December. The reason behind starting with November is also been mentioned in the first video itself, that is the current exams, that is the 2022 defense exams would be mostly based after the initial attempts, right? जो भी CDS2 NDA2 FCAT2 2022 हुआ था उसके बाद वाले मंथ से शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, राइट? दैट मेक्स सेंस as well as that will be a smart approach towards studying the current affairs section and majorly defense current affairs section. So let's start with our month, that is January 2022 defense current affairs. It will be a short video, so please make sure that you stay with me till the very end so that you cover each and every point and each and every current affairs. And as usual, just take your curiosity and your will to learn new things with me while watching this video. That's all I want from you. Okay, so let's start with our first news, that is India has invited 46 foreign countries to participate in मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन. तो आपको याद क्या रखना है, 46 फ्रेंडली कंट्रीज़ और एक्सरसाइज मिलन. और ये वेन्यू कहाँ था, दैट इज़ विशाखापट्टनम. आपको ये बताना है मुझे कि दैट इज़ इन आर ईस्ट कोस्ट और इन आर वेस्टर्न कोस्ट. वेस्ट कोस्ट पे इंडिया के या ईस्ट कोस्ट पे विशाखापट्टनम, वो मुझे बताना है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा. Then the theme of this 11th edition. Now you also have to remember it was the 11th edition, that is in 2022, ठीक है? Jan 2022 to be specific. And the theme was camaraderie, cohesion and collaboration. CCC, triple C. Triple C you can associate with कंप्यूटर एग्ज़ाम, राइट? एग्ज़ाम अगर आपको पता हो कि ट्रिपल सी भी एग्ज़ाम होता है तो आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि यार हाँ एक्सरसाइज मिलन मतलब वो ट्रिपल सी कंप्यूटर रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम जैसा था. Now this exercise has been started in the year 1995 and it is held biennially. It means twice in a year between the navies. Yes, of course. ये आपको यार पिक्चर याद रह गया ना तो मतलब पता चल ही जाएगा that it is a maritime exercise. Moving ahead again to a naval news, the white uniform news, that is multinational naval exercise Sea Dragon 2022 takes place in the Western Pacific Ocean. The name is माचो. यार सी ड्रैगन नाम एकदम खतरनाक नाम दिया है. एंड दैट टुक प्लेस इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. रिमेंबर द वेन्यू. एंड द 6 participating nations were क्वाड. यूएसए, क्वाड मतलब यूएसए, ये जो क्वाड के कंट्रीज़ हैं ना, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साउथ कोरिया और कनाडा आपको ऐड करना है. CS नहीं CA. ओके, आपको ये सब के मुझे कैपिटल्स बताने हैं. फाइन. Now why I'm asking these irrelevant but related to this particular topic, that is defense current affairs, is I've already mentioned take your curiosity and learn to associate different things, different subjects from a single topic. जैसे कि फ्लावर के पेटल होते हैं वैसे एक ही टॉपिक से आपको बहुत सारी चीज़ आपके मन में यार क्वेश्चंस आनी चाहिए. जैसे कि सी ड्रैगन हो गया तो यार हाँ सी ड्रैगन मतलब सी हॉर्स रिलेटेड कुछ है तो सी हॉर्स के बारे में कुछ मैं जान लूँ. ड्रैगन तो ड्रैगन कौन से कंट्री से एसोसिएट करता हूँ मैं. 2022 हुआ तो 2022 में मेजर इवेंट्स क्या है, 2022 में स्पेशलिटी क्या है. एक ऐसा भी नंबर था ना जो अभी कुछ दिन पहले हमने मनाया जहाँ 22 फरवरी 2022 को, ये भी एक स्पेसिफिक डेट था ना. इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो फाइंड आउट कर लीजिएगा. मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी किया था इसके ऊपर, राइट? और ऐसी मतलब अभी कॉड आ गया यहाँ बात. मैं आपको सब सिर्फ कंट्रीज भी बता सकता था, लेकिन कॉड इज़ अगेन दैट टॉक्स अबाउट जियो पॉलिटिक्स, दैट टॉक्स अबाउट समवॉट हिस्ट्री, दैट टॉक्स अबाउट द करेंट सिनेरियो. Hence, that is how you will associate things, that is how you will revise things. It will make things interesting for you as well as it will improve your overall understanding of that particular subject. Not just यार headlines पढ़ के नहीं निकलना है बस. headlines में कोई भी एक क्वेश्चन, एक वर्ड दिखता है आपको, उसके ऊपर खुद से क्वेश्चंस बनाने हैं, खुद से सोचना है उसके ऊपर. That is how you will improve your knowledge and be better and better daily. ठीक है, तो यार इस सब के मुझे कैपिटल्स बताइएगा आप. एंड देयर इज़ ऑल्सो समथिंग नोन एज मिडल ईस्टर्न क्वाड. मिडल ईस्ट क्वाड भी अभी एक बोल रहे हैं, तो मिडल ईस्ट क्वाड में कौन से कंट्रीज़ हैं वो मुझे बताइएगा. ओके, मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ DRDO, फुल फॉर्म Defense Research Development Organization, right? And it has successfully test fired man portable anti tank guided missile MPAD GM.
ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है, उसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको। और DRDO ने टेक्स्ट किया है, मोस्टली DRDO होती है, राइट। तो ये कुछ अलग बात नहीं है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर्ड कौन से कंपनी ने किया है, दैट इज़ भारत डायनामिक्स लिमिटेड, दैट इज़ BDL। लास्ट टाइम इन द लास्ट वीडियो we had a current affairs news related to BEL, that is Bharat Electronics Limited, but this is Bharat Dynamics. Okay, understand the difference, know the difference, and the place would be Bhanur, Telangana. तो कहाँ बनने वाले हैं ये, भानूर तेलंगाना में। ओके, ये याद रखोगे आप। ये मूव आप अगर पिक्चर से एसोसिएट कर रहे हो ना, पिक्चर आपको याद रहेगी ऐसा वाला, आपको फटाफट से याद रह जाएगा वो करंट अफेयर। मूविंग अहेड to our next news, that is exercise PASEX took place at Cochin in the Arabian Sea, and this PASEX is between various countries है, US इंडिया के बीच होता है, इंडिया इंडोनेशिया से बाकी कंट्रीज़ के साथ भी होता है, लेकिन this was between Russia and India, and INS Kochi took part in this exercise. Now INS Kochi क्या है, सबमरीन है, डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या है मुझे बताओगे आप। ओके, मूविंग अहेड। यार ये मस्त फोटो, एकदम मस्त, मुझे झकास लगा। तो ये फ़ोटो से एसोसिएट करते हैं, फ़ोटो से एसोसिएटेड कुछ न्यूज़ रहेगा। सो दैट इज़ स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ द हाइलाइट्स, मेजर वर्ड्स विच इज़ काइंड ऑफ गेटिंग योर क्यूरियोसिटी और गेटिंग योर इंटरेस्ट, और विच आर मतलब इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। स्वीडिश डिफेंस कंपनी है, नाम क्या है, साब, एंड दैट इज़ सिलेक्टेड बाय आर इंडियन आर्म फोर्सेज फॉर सप्लाई ऑफ सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन 84 याद रहेगा, एंटी आर्मर वेपन सिंगल शॉट। अभी आपको ये फ़ोटो से याद रहेगा, ये कुछ ऐसा ग्रेनेड लॉन्चर जैसा लग रहा है ना, वैसा ही कुछ। नाउ दैट इज़ टू बी यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन एयरफोर्स IAF. नाउ कार्ल गुस्ताव सिस्टम ऑफ साब इज ऑलरेडी इन यूज बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस, रिमेंबर दैट। ओके, वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस सिस्टम, दैट इज़ ऑल्सो एंटी आर्मर वेपन। ओके, 84 वो भी एंटी आर्मर वेपन है, 84 नहीं है वो। हाँ, मूविंग अहेड, जैसे कि हमने लास्ट न्यूज़ में देखा था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इंडिया रशिया का, तो मैंने तभी भी कहा था कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड, एंड हेंस दिस इज़ द न्यूज़, रशिया हैज़ डिलीवर्ड 70,000 AK-203 Kalashnikov assault rifles. Now there are again different types of rifles. When I say this word, that is assault rifle, there should be a curiosity in your mind, that is there should be questions in your mind, like यार हाँ assault rifle सर ने बोला, ठीक है, तो बाकी कौन से राइफल्स होते हैं, जैसे सब मशीन गन होता है, लाइट मशीन गन होता है, अगर आप कोई गेम खेलते हो वगैरह तो आपको यार पता होगा ये सब, तो आपको फिर उसके बारे में थोड़ा पता करना है कि यार इंडियन आर्म फोर्सेस कौन से यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ हाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू यार। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग अहेड टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, ऑफ कोर्स 70,000 AK-203 किसने बनाया, रशिया ने, याद रखना है। उसका कैपिटल अभी क्या चल रहा है, रशिया जब भी न्यूज़ में आएगा तब वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, नीडलेस टू से दैट। Moving ahead to our last news, that is about the Western Naval Command. You will tell me the headquarters. Headquarters कहाँ है Western Naval Command के? And it has conducted joint maritime exercise पश्चिम लहर of Western Coast. Of course, Western Naval Command Eastern Coast में नहीं करेगा ना? Make sense, right? Common sense. Western Naval Command तो यार exercise Western Coast पे ही करेगा, जैसे कि Eastern Coast पे तो Eastern Naval Command करेगा, right? And it is a joint maritime exercise, that is पश्चिम लहर 2022. नाम आपको याद रहना चाहिए, कौन से कमांड ने किया है, उनके हेडक्वार्टर्स क्या है। ऑफ कोर्स नाउ दिस पर्टिकुलर मंथ इज काइंड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द करंट अफेयर्स इज फ्रॉम द नेवी। रेस्ट ऑल देर आर नो such important defense current affairs, so I will keep this video short. I hope you have achieved you have learned something new, you got some value from this video. If so, please do support us, help us reach more and more people out there, so that if there is anyone needy of it, यार एक दो भी क्वेश्चंस किसके बन गए ना तो मेरे एफर्ट्स बहुत हो जाएंगे। So that's it, that's Screen Guru for you. Have a great time ahead, all the very best. One eternity later. So please whatever. Please I want to reach 1 million